हेलो नमस्कार आदाब, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1231st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। आई रियली वांट टू थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लिक्स्टर्स का अमेजिंग सा पॉप्सिकल, and really want to thank our title sponsors Parik Brothers Jewelers. Parik Brothers Jewelers presents Raj Ki Baat Women of the Year in association with Pehnawa Boutique. A big thank you to Andhra Multi Services, Strawberry Farms, and also a big thank you to Money Edge, which is helping women grow their money and become financially independent. Also a big thank you to Cut Salon, Mampi reusable diapers for children, and Hamper Ride by Nidhi Rathe. ये पॉप्सिकल देखकर आपको बड़ी खुशी हो रही होगी, देखकर कि राज नागपुर की इस गर्मी में जो शुरू हो चुकी है कहीं ना कहीं, उसमें बढ़िया पॉप्सिकल आइसक्रीम खा रहा है लिक्स्टर्स की। लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो हैप्पीनेस की जो सिपिंग है ना, ये इतनी अमेजिंग है, और ये लिकिंग जो है ना इतनी अमेजिंग है, जिसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबडी वुड लाइक टू कम टू धर्मपेट एंड हैव अ लिक्स्टर्स का पॉप्सिकल। वेल, people who are now the talk of the town, not the talk of the town but also the talk of the nation, उनकी जो the best half है, आज उनका exclusive interview। Please welcome the one and only Divya Subburaju, the women of the year today. Hi Divya, how are you? I'm good, how are you? I am super and I'm so excited. I'm so happy to meet you. Thank you. So when Raj Ki Baat started, if you remember, during the times of COVID. Oh yeah, I do remember. Definitely I do remember. And we did one exclusive interview. Yes, definitely. During that time. Yeah. And I still remember that time that store was inside. शटर्स बंद था। शटर्स बंद था, के time. बिल्कुल Yes. बिल्कुल। एंड बंद शटर के अंदर में हमने वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था। तब भी हमने आइसक्रीम खाते खाते किया था। आई हैड दैट राज, पॉप्सिकल। आपका तो मेरे को बात अच्छे से याद है। You were the one who first said like I want to see Licksters internationally, internationally मेरे को दिख रहा है। So thank you so much. मतलब मेरे सपने साकार हो रहे हैं। But I'm so glad. I mean, Divya and Parimal Yes. are I really wish Parimal was here, but women yes, of the year. yeah, women so, of the year, yeah. है ना? Yeah. But you are you have been an inspiration for a lot of people out Means there. a lot. Thank Yeah, you. and let's know the story of Divya Subburaju, Yes. है ना? So you have a very interesting story. Let's start from the beginning. Yes. ये आइसक्रीम की जो चाहत है या नागपुर से कनेक्शन है, परिमल, a lot of things. Yes. Let's talk about that. Yeah. Where were you born? Where are you from? I am from a small city named Trichy in Tamil Nadu, Mhm. and I was born. I studied over there. Then I moved to Bangalore for my further MBA studies and worked over there. तब कनेक्शन हुआ नागपुर का। उसके पहले मैं एक बार बचपन में आ चुकी हूँ, where I came with my parents to just to see नागपुर as a tour आया है इधर, but आइडिया ही नहीं था कभी this place will become my my most important place in my life. So पहला शादी के बाद देन वी केम टू नागपुर। आई शिफ्टेड हियर टू नागपुर विद परिमल एंड बहुत बढ़िया लगा। वेरी नाइस सिटी। पहले तब जैसा बैंगलोर से शिफ्ट हो रही थी, आई यूज्ड टू वंडर गाड़ी क्यों ये सब स्लो चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई आर एवरीवन गोइंग स्लोली। देन उसका आदत मेरे को भी आ चुकी है। 5 मिनट रोड में पहुंच रही हूँ एंड आई टेक टाइम टू, बट it's that's how Nagpur is. I'm loving the place. It's really so nice. The infrastructure is so nice. Everything is wonderful over here. So you came in which year? 2000? 2016 I was here. You were here. Now it's almost 6-7 years. No, but Yeah. you came here for education. No. No, I came here after marriage. Okay, so before marriage कहाँ थी आप? Bangalore में। क्या कर रही थी वहाँ? उधर मैं MBA किया था इन मार्केटिंग एंड रिटेल मैनेजमेंट, वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल्स में। उसके बाद देन आई वर्कड विद अ कंपनी नेम्ड IQPC, उसके पहले फ्लेमिंग गर्ल्स, एंड दीज वर द कंपनीज वी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेस अक्रॉस द ग्लोब, स्पेशली इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन. So my overall job is to contact and stay in touch with all these big companies like Saudi Aramco, to all these any big oil and gas industry you speak to. So in terms of the conferences which we used to hold, and a lot of understanding in that particular industry. So अब you met Parimal there. That's an interesting story. So yes, what's the story? So तमिलियन हूँ मैं, so शादी का बात शुरू हो जाती है बहुत जल्दी
बहुत जल्दी 23 24 के अंदर शादी नहीं हुआ तो पेरेंट्स को बहुत टेंशन हो जाता है, नो शादी तो करना ही है। एंड व्हेन बाय दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी नेम शार्प इन चेन्नई। बाय दैट टाइम शार्प इज अ वेरी मल्टीनेशनल कंपनी, is into television and a lot of things. television, everything into manufacturing all these white goods basically, and TV panels, a lot of things actually. So tab when I was there, my parents started visiting an astrologer, and astrologer said like I was like feeling up and down during the first job रहती है ना, like हमेशा परेशान करते हैं पेरेंट्स को, like मम्मी आज पैर दुख रहा है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। So my mom and dad used to console, see that's how life is, like you have to start learning and all this. So I was like too much of emotions ups and down, and then they thought okay, they were not so much into astrology, but जाके देखते हैं क्या है। So the astrologist said आप जॉब वॉब छोड़ो, like पहले शादी की बात करो, if she is not getting married before 24 she'll never get married for the next so many years or something like that। parents पूरा टेंशन में। True. So they were like they started trying to register in Bharat Matrimony, in Shaadi.com, and so many platforms, and उसमें एक platform में थे। Then that time it was my exam holiday, so mom gave me a laptop and said like आप भी ढूंढो, आपको कुछ कोई पसंद आया बताओ। So उसमें actually I came across Parimal's picture. Okay, उसमें लिखा हुआ था Karthi Muthu, which was actually a Tamil name, and Sanyo से कहीं और का information था, and it said he was a Tamilian. So मेरे पता नहीं कुछ feeling होती है जो हम कोई explain नहीं कर सकते, that you feel that he is the guy। पहली नजर में मोहब्बत। I mean, yeah, I never thought it would happen. Yeah. जी। So we started searching. I showed it to my parents. Then they said like ठीक है देखते हैं, and उसमें request भेजा तो accept हुआ। उसके बाद information नहीं आ रहा था, and Shaadi.com में हमने paid service नहीं लिए थे। Right. So usually when somebody is very serious, they have profiles in every platform. Right. So like उसके लिए क्यों और 20-30,000, like let's search like another profile। कहीं पर भी मिला ही नहीं बंदा। Literally वो नाम डाल के I'm like friend back नाम हर Facebook और इस पे everywhere I tried, it did not happen. So then बाकी सब चल रहा था, then almost 2.5 months, but वो picture वो कहीं वो जो भगवान ने जो चाहता था वो ज़हन में था। Yes. So then by that time Google Lens करके जो अभी है, तब Google Goggles था जिसमें आप एक पिक्चर डालेंगे, उसका रिलेटेड सर्चेस सब आती है बराबर। So तब उसमें मैं पिक्चर्स परिमल का जो पिक्चर था उसमें Shaadi.com में वो डाला था। मतलब गहरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। Oh my God, I was very good at research। कंपनी भी मेरे को इतना अच्छा जी। So तब शुरू किया, then came the results, परिमल कारीकर, नागपुर। तब मेरे को नाम भी कैसे प्रोनाउंस करना है पता नहीं। I used to call him Parimal, something like that, I don't know। Like then I pinged them everywhere, Facebook, Google, everywhere, and I asked him, is this you? I found you in this, and he said मैं पिक्चर में जो हूँ मैं ही हूँ। एंड दैट पिक्चर वाज एक्चुअली फेमस वन बिकॉज वो परिमल हैड रिटन अ नेशनली पब्लिश्ड बुक बाय रूपा पब्लिकेशंस। ओके। जो चेतन भगत का बुक पब्लिश करते हैं वही पब्लिकेशंस, वो नेचुरली उन लोग ने पब्लिश किए थे, गॉडली ब्लंडर करके। उसका इंटरव्यू था, उसका इंटरव्यू में ये पिक था, व्हिच वाज एक्चुअली यूज्ड इन सो मेनी, लाइक ये Shaadi.com में कोई तो भगवान कौन किया पता नहीं जी। अच्छा पता भी नहीं चला ना किसने किया। So that yeah, when I approached him, he said the picture is mine, and but मैं मेरा प्रोफाइल नहीं हूँ, मैं तमिलियन नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, and that's how we started speaking. In fact, after that वो बीच में नागपुर का सब जगह जो डिजिटल बोर्ड्स आती है जिसमें वो वेदर कंडीशंस वगैरह बताते हैं, बराबर, उसमें भी बीच में वो जो इलेक्शन के टाइम पे उसमें परिमल का पिक्चर था। Like everyone started calling and saying यार कुछ गवर्नमेंट की स्कीम में इन्वेस्ट किया क्या आपको, कुछ पिक्चर सब जगह दिख रहे हैं। We thought like people were like just joking around, and then एक दिन हमने एक रात को शुरू किया, ठीक है जाके देखते हैं, सब लोग कॉल कर। He was there in every hole. I said like vote, be a responsible citizen. I said यार एक ये पिक्चर के कारण एक शादी तो हो गए, अभी क्या चल रहा है पता नहीं। Then that's when we started speaking with each other. Of course Maharashtrian, Tamilian अलग था, ये कॉम्बिनेशन बड़ा अलग है, बहुत अलग है। पेरेंट्स को बहुत मुश्किल था दोनों साइड में, तमिल नहीं है तो शादी नहीं, वो सब चल रही थी। Then everything went well. It almost took 2.5 years, 3 years
देन मेरे पेरेंट्स को तो डर आ गया था, ये नहीं ये तो लग रहा है शादी नहीं लगेगा, कि बात करके तो देखते हैं. सो ही केम डाउन एंड व्हेन ही लाइक ऑफ कोर्स परिमल को किसी जानते हैं तो पता है वो बहुत अच्छा है. सो व्हेन दे मेट हिम दे वेरी हैप्पी, देन दे स्पोक टू पेरेंट्स, सब अभी बढ़िया शादी हो गए, अच्छा चल रहा है. यस, I learned Hindi after coming here, so bear with my Hindi. No, it's good, it's good. Yeah. Acha, you got married. When did you both, thought of coming up with, something into ice cream, something into popsicles, Yes. where, Nagpur is a center Yeah. of a very big brand. Yeah. People eat ice cream. For them, ice cream is a brand which they always relate to. Yes. Because the people have had this Yes. since their childhood. Yeah. कैसे सोचा? Okay. Who was the inspiration behind? Yes. So परिमल का हमेशा ये कहना था that he wants to start an ice cream brand after his retirement. ऐसा fun के लिए शुरू करना है. But we never thought it will happen so soon. What happened was we were doing a business simulation program, with multiple colleges, B schools. इधर हमारा जो राइसोनी है, जैसा उनका साथ कॉन्ट्रैक्ट था, जैसा बाकी B schools है, ये सब जगह हम उनको बिजनेस सिमुलेशन कर रहे थे, जिसमें वी यूज्ड टू पुट देम इन द मिडल ऑफ बिजनेस सिचुएशंस एंड आस्क देम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, और उसका मार्केटिंग, उसका डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑल टुगेदर. वी यूज्ड टू ट्रेन देम. वेरी इंटेंस प्रोग्राम रहती थी, नॉट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जस्ट स्टैंडिंग एंड स्पीकिंग समथिंग. इट वाज वेरी इंटेंस प्रोग्राम. उनको रोल दिया जाता था. सो ये सब करते करते एक चीज, पहला चीज था ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी लाइक सीजनल, बिकॉज बीच में एग्जाम्स आती है, देयर आर टाइम्स वेयर देयर आर अदर प्रोग्राम्स गोइंग ऑन. सो वी यूज्ड टू ट्रैवल टू सो मेनी cities, so many colleges, and then we were thinking यार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत पसंद आया, स्टूडेंट्स यूज्ड टू लव अस, एवरीथिंग हैपेंड. बट वी थॉट यार इन अ ईयर देयर आर ओनली 52 weeks. Our overall program which we used to do was for 1 week. We thought how many weeks हमको मोटा मोटी, like if we are even doing half the weeks, then that is how much we can grow in a business. Like we were always thinking we should start a business that we can scale up very easily. Right. Like which will not need us to be there all the time. And सब students को business simulation करते करते हम भी बहुत सारे चीज सीखे थे. बहुत सारा दिमाग चलता था business के ऊपर. Then we thought we should always have a product which we can. Service के business में क्या होती है, the prices you have to always there are so many things which we have to explain when it comes to a service. In a product it's completely different. True. We wanted to explore that. एंड तब हमने एक बीच में एक इमोशनल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किए थे चेन्नई में. तब उसमें 100 days के चैलेंज दिए थे, जिसमें शुगर नहीं खा सकते हैं, ना कुछ डेयरी दूध के चीज खा नहीं सकते हैं, जंक चीज खा नहीं सकते हैं, जैसा उसके अलावा ग्रेटिट्यूड लिखना, और हम दोनों ने अच्छे से हाउ टू इम्प्रूव अ केमिस्ट्री बिटवीन ईच अदर. ये बहुत सारा चीज उसमें था, जिसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज एटलीस्ट खाने से शुरू करते हैं वो, और ग्रेटिट्यूड हम पक्का कर रहे थे. सो तब करने के टाइम पे आइसक्रीम तो लवर्स है. देन दैट वाज द मिडिल ऑफ समर इन नागपुर को इतना गर्मी, 45 डिग्री गर्मी में वी वर लाइक गोइंग थ्रू द चैलेंज. नींबू पानी नहीं पी पा रहे थे. दैट इज वन स्पेशलिटी ऑफ नागपुर. सो तब करने के टाइम पे वी स्टार्टेड ईटिंग फ्रूट्स. राइट. हम फ्रूट्स खाना शुरू किया था. तब भी हमको स्वीट का क्रेविंग होती थी, खाने के बाद कुछ खाने का क्रेविंग होती थी. ग्रेप्स से वाटरमेलन से हर तरीके के फ्रूट्स खा रहे थे. सो फ्रूट के साथ इतना मजा आया, उसका इंटेंस टेस्ट, उसका टेक्सचर, हर फ्रूट का कलर, इतना प्यार हो गए. और देन व्हेन वी एक्चुअली ऑलमोस्ट 70-75 डेज तक किए हमने वो चैलेंज, उसके ऊपर नहीं हो पा रहा था हमसे. सो व्हेन वी वेंट टू आइसक्रीम प्लेस एंड व्हेन वी हैड आइसक्रीम्स, हमको इतने दिन का वो आदत था ना, the texture and taste which we love, we couldn't find. We saw it in the cover of the ice creams, but we couldn't find it in in the taste of the ice cream. So हम सोचे थे, then we started realizing इसमें इतना chemicals, fruit like flavor, and then क्या बोलते हैं, syrups and all these things. 2% of fruit, 20% of fruit. हम सोचे क्यों, like when we are using so much of fruit in the packet, उतना fruit का taste नहीं आ रहा है. Then we started experimenting. Parimal said like हम करते हैं. Then we started together. Then छोटा सा fridge. Then we had to work on the texture a lot. बहुत सारे चीज like experiment करते. Then
We started in the first store where we met, you know, in Dharampet, खारे टाउन के अंदर. Right. So हमको तो कहीं स्टोर में डालना है, क्लाउड किचन शुरू करना है, कैसा होगा रेस्पॉन्स, बिकॉज इट वाज समथिंग वेरी न्यू. पॉप्सिकल्स का, यू नो, पॉप्सिकल्स भी ऐसा नाम है जो एक्चुअली पानी और सिरप के लिए बोलते हैं पॉप्सिकल्स. उसके लिए अलग टर्म ही नहीं था. वी कैन कॉल इट अ फ्रूट बार, बट जिसी को यू नो like they cannot relate to. Then आइसक्रीम्स बार शुरू किया. So slowly करते करते तब हमने शुरू किए थे 5 फ्लेवर के साथ. अभी ऑलमोस्ट 30 से भी ज्यादा फ्लेवर्स हैं. Wow. Yeah, and we have other products also introduced, just trying to just improve ourselves on a daily basis. And this is how Lickster started. Yes. Wow. Yeah. And kids played a very important role. Very important role, definitely. पहले we used to think like, you know, एक पॉप्सिकल बच्चे कैसा खा सकते हैं. अरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, उनके हाथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं. मैं उसको सीधा पकड़ूंगी, अच्छे से खाऊंगी, और एक में नहीं बंद करते हैं बच्चे. They are used to having even more than Yeah, because they're more and the flavors are amazing. Thank So you. and you know, जो flavors हैं प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताएं कि you know what kind of flavors have you introduced with time? सबसे इनिशियल फ्लेवर्स हमने शुरू किया था बिकॉज इट वाज समर. वी हैड मैंगो, एंड सबसे आई वुड से वी आल्सो, And mango was mango. It was mango. या इट इज देवगढ़ का अल्फांसा. Yes. And you know, such a funny flavor we always laugh about is we started with also green grapes. Yes. क्योंकि green grapes was something we were having constantly. Right. But I mean, लोग वो भी appreciate किए थे, but we discontinued later on. But green grapes was something we started. Right. Then there was plums and California grapes. वो खट्टा मीठा का combination था. Then kiwi and pineapple, like you know, these were very good. Then we had mango with a cap of kiwi also. Right. You know, ऐसा सब flavors. Watermelon was something. Watermelon is such an intense flavor, you know, fruit. Because usually पहले क्या होता है, like when we started, watermelon का बीज निकालना पड़ता है. Yes. So I was a fruit ninja over there. Right. So I used to, like, you know, we even updated in our Instagram. If you see, like, you know, एक बीज हमको पूरा निकाल के then we should be blending it, because it's very easy for any ice cream company to just add 1 or 2 drops of the essence or you know, some syrup in it and say it's watermelon. बट फ्रूट में काम करना बहुत मुश्किल रहती है. बहुत अच्छे फ्रूट्स चूज करना पड़ता है, सही स्टेट में उसको पका के फिर बनाना पड़ता है. एंड लाइक से फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल का वी बाय इट कच्चा, and we make sure that we ripen it to the certain stage, right stage में, जो it should not go bad, it should not be very raw. And वो stage में actually उसके साथ sugar जो add करना पड़ता है ना, it is very less. So basically you're having fructose more than like the sugar part. So बहुत healthy हो जाती है उसके वजह से. So जैसा आपने एक शक्कर जो टीस्पून डालते हैं 6 grams of sugar in popsicle, उतना ही हमको डालना पड़ता है ये जो fruit flavors में. So it's very nice. पैसे कहाँ से आए, वो कैसे मैनेज किए? Okay, पहले हमने बहुत जो भी सेविंग्स था हमने बहुत सारा उसमें से निकाले थे. एंड वेरी ऑनेस्टली मेरे पेरेंट्स थोड़ा बहुत हेल्प किए थे. एंड दूसरे हमको बैंक्स पीछे पड़ना, बिकॉज सी बैकग्राउंड नहीं है तो इट टू फॉर एवरी नॉर्मल पर्सन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. ट्रू. पहला कोविड तो थोड़ा बहुत मैनेज कर पाए थे बिकॉज यू नो वी वर सीइंग, एंड लकीली ऐसा था रेस्पॉन्स पहले दिन से ही शुरू हो गए थे. नागपुर का लोग इतने सपोर्ट किए हैं, इतने अप्रिशिएट किए हैं. वी डिड अ गुड नंबर ऑफ सेल फ्रॉम द टाइम इट स्टार्टेड, बिकॉज कुछ बिजनेस शुरू करना और इमीडिएटली उसमें रिटर्न देखना मुश्किल रहती है. सो दैट हैज बीन ऑलवेज देयर फॉर अस. टाइम क्यों नागपुर हो तो मैं कितना टाइम के बोलूं पता नहीं, उतना बोल. एंड आल्सो राज की बात. या बिल्कुल राज की बात. मेक श्योर लिस्टर्स इज नॉट हैप्पी. देन सेकंड कोविड का पूरा दौर आया. मैं बेशरम से आजकल बोलना शुरू कर लिया, लेकिन हमने गोल्ड बेचे हैं, हमने क्या सेविंग्स नहीं, थोड़ा हम क्या किया, जस्ट सो यंग, कितना सेविंग्स होती है हमारे पास, राइट? सो वी जस्ट सोल्ड सो मच, लाइक यू नो, आई डोंट वेयर सो मच और ही डजंट वेयर सो मच. ऑफ कोर्स वी डिड एवरीथिंग टू मेक श्योर बिजनेस जो रहती है, दे से दैट यू नो बिजनेस एक 3 साल 5 साल होती है जो प्रॉपरली उसको यू नो आपने देख लिया. जैसा छोटे बच्चे हैं उनको 3 साल 5 साल तक देख लिया, उसके बाद वो खुद ही चलना चालू कर दिया. एग्जैक्टली. सो वी वांटेड टू मेक श्योर दैट ये पार्ट को हम अच्छे से देखें, बिकॉज रेस्पॉन्स भी आ रहा था एंड पीपल स्टार्टेड लविंग इट. सो द मेजर मोटिवेशन वाज दैट अच्छे क्वालिटी मेंटेन करना है,
like employees को अच्छे से रखना है. We didn't have to fire anyone during that time. We made sure that everybody are like properly taken care of. And बहुत बड़ा responsibility feel होती है तब we have employees and हमारा कार्ड, हमारा रेंट, हमारा इससे ज़्यादा उनका properly set होना, because their family will be dependent on that. Yes, So yes. that feeling keeps us going, and every time when we feel a little low also, that there are like 20-25 people in our team right now, that feeling keeps us going, because they're working for us, they're working with us, and unka family is all dependent on the income ye generate kar paya is like thank you God, that's what we say. But at the same time like ye और बढ़ाना है, और लोगों को पहुंचाना है, और अभी very soon we are reaching to different places too. कोविड के दौरान एक ऐसी चीज हुई जिसने दिव्या को पूरा हिला दिया अंदर से. Yeah. क्या था वो? सेकेंड कोविड था तब परिमल के मम्मी पापा इधर कोविड उनको भी आई थी तब द सेकेंड कोविड हिट अ लॉट ऑफ पीपल. आई मीन फर्स्ट कोविड ऐसा था दैट कहीं सुन रहे हैं दैट समबडी इज पासिंग अवे टू एवरीथिंग, बट सेकेंड कोविड में ऐसा हुआ दैट पहला स्लो क्लोज कम्युनिटी, क्लोज हमारे बहुत जानते हैं वो लोगों को हो रही है. तब वी स्टे इन प्रताप नगर, पेरेंट्स स्टे इन धर्मपेट, सो उनको हम स्विगी जीनी ऐसा वगैरह खाना पहुंचा रहे थे, ये सब कर रहे थे. Then the call came from my parents that उनके उधर my mom, dad and grandpa they have COVID. My grandpa is like more than 86 year old. He did not have COVID by then. So call आ रहे थे, and तमिलनाडु में बहुत strict norms था. मतलब 2 दिन में एक बार सब्जी मिलती है, वो भी 1 घंटे के लिए. So there was no one. My parents say stay away from all the relatives, like दूर है, relatives are in Chennai, ट्रिची में कोई नहीं था. सो वी जस्ट थॉट यार हमने तो 1-1.5 साल से बाहर घूम रहे हैं. पहला कोविड के टाइम पे तो हम टी बना के सब पुलिस को सब जगह बांटना शुरू किए, पाव भाजी बनाना शुरू किए. एवरीबडी वर डूइंग इट, एवरी फैमिली वर कंट्रीब्यूटिंग. सो लाइक दैट वी वर डूइंग. सो वी थॉट कहीं ना कहीं तो हमको आके गया होगा, लाइक पता ही नहीं चला, मे बी वी माइट बी द लकी वन करके ओवर कॉन्फिडेंस में हमने सोचा था ठीक है विल गो हेल्प देम एंड लाइक विल गो एंड टेक केयर ऑफ देम, ऐसा सोचे थे. एक गलती की है हमने, सुबह कोविड का क्या बोलते हैं इंजेक्शन क्या है वो कोविड वैक्सीन वैक्सीन लिए थे, एंड वी डिड नॉट नो दैट वैक्सीन लेने के बाद इमीडिएटली वो 15 दिन हमारा इम्यूनिटी और कम हो जाती है जी. उसी दिन रात को हमने फ्लाइट पकड़ के गए. वी वेंट टू ट्रिची एंड एकदम डायरेक्ट इन फ्रंट ऑफ द पीपल हु हैड कोविड. सो मॉम एंड डैड थे, देन वी वर टेकिंग केयर ऑफ देम. तब करते करते वी वर ऑल्सो कॉन्फिडेंट बाय देन कुछ नहीं होगा, ऐसा दैट प्लेस वाज देयर, कुछ नहीं है, कोविड कुछ नहीं होता है, हम यंग हैं, वैसा थे. एंड माय ग्रैंडफादर हैड कोविड. जैसा नागपुर में चल रहा था, ऑक्सीजन मिल नहीं रहे थे, यू हैव टू गो एवरीवेयर, जैसा ही ग्रैंडपा के लिए भी थोड़ा सा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, इट वाज गोइंग डाउन. देन वी फाउंड समवन, ये सब ऑक्सीजन वगैरह सेट किया, सब हो गया. देन परिमल को बुखार शुरू हुआ. सो बुखार शुरू हुआ, 4 दिन हुआ, कम ही नहीं हो रही थी. परिमल वॉज लाइक मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही हूँ, ठीक हो जाएगा. एंड माई रिलेटिव, माई अंकल्स ब्रदर बेसिकली, ही इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ ऑल दीज कोविड का, सब देख रहे थे, टीवी में भी आते हैं. ही वॉज एक्चुअली ओवरऑल कंसल्टिंग ओवर द फोन विद अस. सो ही सेड एक दिन परिमल का बर्थडे था, उस दिन 22 ऑफ मई वो बुखार चढ़ना शुरू हुआ. आई मीन कम ही नहीं हुआ, ऑक्सीजन रखना पड़ेगा करके बोल दिए थे. देन इट वाज लाइक ऑक्सीजन रखने के बाद भी हिज ऑक्सीजन वाज गोइंग डाउन, वाज इन 85 ऐसा. सो वी गॉट वेरी स्कैर्ड. ही सेड कुछ तो करो, लाइक आप गाड़ी में डालो, लेके आ जाओ चेन्नई, में देख लूंगी. And then we immediately left over the night, 3 o'clock ढूंढ रहे हैं. I am sure this would have been the major scene in everybody's family. Like it did not just happen for me, it happened for everyone. But that time I'm just like trying to yes. So उस टाइम हमने लेके गए. Dad just came out of COVID, पूरा खत्म भी नहीं हुआ, ऑप्शन नहीं था, कोई और नहीं था. Then इधर से चेन्नई गए, उधर एक हॉस्पिटल में. Then I mean, my relative who was such a big person, who is specialized in this field, report देख के बोला था दिव्या बोल नहीं सकते, क्या करें. Like it went to that stage where मैं हर डॉक्टर को पूछ रही हूँ, just tell me he'll be all right. And पहले दिन तो बहुत रोया. They had to find an ICU for him which was not available easily. And बहुत रोया.
and बेचारा he did not know the language over there. Luckily the hospital people knew English. तमिलनाडु में ऐसा होती है. So he was scared, but the first thing the nurse asked was, "Sir, how are you feeling?" So he was very happy. At least they speak English. Somebody. Yeah. So then it went on. ICU के लिए बहुत दौड़ रहे थे. सब लोगों को कॉल कर रहे थे. By that time, the first day I even called Raj. Yes, I called everyone I knew, saying पता नहीं क्या करूँ. And everybody, including Raj के wife and उनके बच्चे, सब लोग pray किए थे, मेरे को पता है. And there were so many others whom we know prayed. Yeah. That is all everybody could do by that time. Yes. They prayed, and that gave me a lot of hope also, because इन लोगों के साथ मैं रात को 12 बजे भी कॉल कर रहे हैं. Raj was picking up the call for me. Yes, and he was yes. like, Divya क्या हुआ, बताओ मैं कैसा help करूँ. So this is one line which gave a lot of confidence. ये टाइम पे हमारे सराउंडिंग में जो हमारा दोस्त है जो हेल्प करते हैं, बहुत सारे लोग बोले थे आपको क्या चाहिए, कोविड है, दैट टाइम यू कैन नॉट मीट पीपल, बट उसके लिए भी लोग रेडी थे दैट आना है, क्या करें बताओ इमीडिएटली. सो बाय दैट टाइम देन अगेन एवरीथिंग वाज स्लोली सेट. एंड first day मैंने बहुत रोया, as if the world comes in front of you and shows all kind of fear. सेकेंड डे मैंने रियलाइज किया जिस तरीके से हम दोनों का कहानी है, जो हम ऑनलाइन ऐसा मिले, मिलने का, इट इज रेयरली इट हैपेंस लाइक दिस. एब्सोल्युटली. एंड लिक्सटर्स का उतना बड़ा हमने स्ट्रगल देखे हैं, जिस तरीके से हमने काम किए हैं. आई थॉट इफ द स्टोरी एंड्स हियर इन सच अ वे, देन गॉड इज रियली बैड. ऐसा नहीं हो सकता है. गॉड इतना बुरा स्टोरी नहीं बनाएंगे. बिल्कुल. Then that gave confidence. पहला दिन the pillows were so wet. The second day was like confidence आया. Then उसी टाइम मुझको भी कोविड हुआ, हॉस्पिटल में घूम रहे थे. My dad just came out of COVID. He was also roaming around. सब हो गया था, but slowly things started picking up. पहले 3 दिन, then ICUs, then बहुत सारा देखना पड़ा. And I don't want to talk about it. It went in a very different way. परिमस का parents इधर, they were really tense. They were also old. सब चीज, सब जगह. But एक तो चीज है, सब लोग साथ में आए थे, हेल्प किए थे, एटलीस्ट टू कीप आवर ओवरऑल इमोशंस ऑलराइट. एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड. थैंक यू सो मच. आपको इतना थैंक यू बोलने के लिए चांस नहीं मिला, आज मौका मिल गया, मैं बता रही हूँ. सो दिस इज हाउ इट हैपेंड. दिस शेक्ड अस अ लॉट. एंड आने के बाद बहुत ज़्यादा और रियलाइजेशन आए और स्ट्रॉन्ग इमोशंस आए दैट वी शुड डू मोर फॉर पीपल. अच्छे से और अच्छे चीज़ खिलाना है. दैट वन थिंग हमको बॉन्डिंग है ना, पहले भी था ब्रांड के साथ, करना है, अच्छा करना है करके, और उसका स्ट्रॉन्ग बनाया. देन वी स्टार्टेड टेकिंग बिगर स्टेप्स. लाइफ हो सकता है. परिमल ऑल्सो फेल्ट इधर तक ऐसा जाग के देख के आया, बोलते हैं ना, दे हैव ऑलमोस्ट गॉन दैट फार. So he felt a stronger thing that we should do even more, we should make it big. Then came something which is now probably the talk of the nation, which is Shark Tank India. How did that happen? Okay, Shark Tank India, we did see first season. हमारा Shark Tank US तो it is like our mentor in terms of the video only. Right. इतना discussions होती है, हम immediately उसके बारे में सोचते हैं हमारा business में क्या होता है, what can be changed, what has to be adapted. And Shark Tank India पहला season देखा. Second season we just thought okay, let us try, let us just put it and let's see what happens. So पहला round के लिए हमने online apply करना पड़ा with a lot of details and everything. Then after a few months the mail came saying that you are done with your first stage, now you are selected for the second round. We were excited, wow. Okay. Then a lot of questions, at least 30-40 pages ka deep questions, numbers, a lot of things were asked. Along with that we had to send them a video जिसमें हम if you go to Instagram recently हमने share भी किए थे हमारा story का पूरा video बना के कैसा है product, क्या है, भेजना पड़ता है. Then we sent that also along with so much of detail in description. Right. Then we were like every day I used to check हो गया क्या. Then final day आया audition के लिए आ जाइए Bangalore, because Bangalore we selected. Then we took Licksters उधर and Shark Tank का पूरा team थे, of course not the Sharks, बाकी team थे, production, direction, सब लोग थे, judges. So they loved जामुन, they loved every product. ऐसा बहुत मज़ा आया देखने में. हमारा शेयर में जो बनाया चीज़ बाहर लोग लेके पूरा टीम पूरा खा रहे थे, पूरा मस्त एंजॉय कर रहे थे, आके बता रहे थे दैट मुंबई में जल्दी खोलो, इधर जल्दी खोलो. They loved it. Yeah. And audition बहुत अच्छा गया. It is almost like how it happens in front of the Sharks. Not that intensive, but they try and understand how we are in front of the camera to everything.
वो भी हुआ. Then उसके बाद then we had to wait to understand whether we cracked that round or not. So again एक डेट महीने, then final call came. अक्टूबर में मिड वीक में आ जाओ मुंबई. एक हफ्ते भी नहीं, 3 दिन के पहले बताते हैं. That's how much closer they tell us. They already told us in Bangalore audition that you know already आप ड्रेसेस वगैरह रेडी रखो, सब रेडी रखो, कभी भी कॉल आ सकता है, आपको इमीडिएटली आना पड़ता है. So they just sent 3 days back, you know, इतना सारा ड्रेसेस के साथ स्लीपर शूज सब करके you have to get all these things, all ये सब रेडी करके आ जाओ. So तब हमारा नासिक का आउटलेट भी उसी दिन के पहले दिन ओपन हो रहा था. So 10th of November we actually opened a store in Nashik. Luckily it is very close to Mumbai, so इधर से 16 hours हम ड्राइव किए, उधर से then we reached Mumbai also. So नासिक का स्टोर ओपनिंग हुआ, उधर हम हाई हेलो बोल के then franchise owners को अब congratulate करके फिर we went to Mumbai. It happened in Yash Raj Studio. Wow. So it was really nice seeing all celebrities, गाड़ीज, everything, security बहुत बढ़िया था and exciting था. हमको जुहू बीच के सामने एक होटल में we were, it was provided by them, we were there and from there they used to take us to Yash Raj Studio. पहला दिन instruction क्या होना है क्या नहीं. So young team, बहुत अच्छे टीम थे उनके. So I think पठान मूवी जो चल रही है उसका जो ऑडियो यू नो रूम रहती है, रिकॉर्डिंग रूम, उसके जस्ट बाजू में ये वाले स्टेज था. स्टेज 3 आई रिमेम्बर सो वेल. सो स्टेज 3 में इट इज ऑल लाइक यू नो द ब्लैक कर्टन्स एवरीवेयर इन योर लाइक कूल रूम एंड वी हैव सो मेनी टीम्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड there actually final shooting happens on Friday, Saturday, Sunday. Okay. तो ये 3 दिन में शार्क्स आते हैं. So they don't see us at all. पहले उनको दिखेंगे ही नहीं, हम भी उनको दिखेंगे. They will also be not seeing us. So a lot of practice happens. So many teams are there. Business managers team रहते हैं, then there is this pitch team रहती है, and so many teams who the costume team and everyone. So they get to understand our history, geography, कहाँ पैदा हुए, कहाँ क्या हुआ, everything they understand. Then they help us in the pitch, like उनके सामने बात करने के लिए हमको prepare करते हैं, दोनों मिलके pitch prepare करते हैं. Then वो 3 दिन इतनी बार हम pitch करके देखते हैं. So it happens from morning till night. उधर ही है. बीच में we used to go outside and see okay कोई दिख रहे क्या. And I don't know a lot of celebrities in this region, but we did see a lot of them. लास्ट दिन तो 2 Mercedes S-Class देखे परिमल was saying ये तो पक्का शाहरुख खान का ही है. इनका ही हो रहा है शूटिंग पीछे, I mean ऑडियो का जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये तो पक्का है. बट उस दिन हमारा डील मिली, they were like immediately आप गाड़ी लेके जाओ सर. they come like लास्ट दिन जिस दिन डील मिली है they don't let us speak to anyone. एक security जैसा एक person हमारे साथ they come and then other days we have to wait in the गाड़ी, we have to wait for every team member to come. Last दिन तो ऐसा feeling होता है that you know क्या ही हो गया. Then they make us just come sir किसी से बात मत करिए, मैम किसी से बात मत करिए, don't disclose anything. And then गाड़ी बुलाते हैं and they make us sit, आप रूम जाइए. Okay. So that is how it happened. So how was it? What was the deal? Deal क्या हुई? डील क्या हुई, हम वी आस्क्ड फॉर 50 lakhs for 5% and you know बहुत सारा डिस्कशन. द ओवरऑल शूटिंग हैपेंस फॉर 1.5 hours. सो जो दिखाते हैं दैट इज ओनली 10 minutes 12 minutes. ऑफ कोर्स बहुत सारा एडिटिंग होती है. एंड जिस दिन अंदर गए हैं शार्क्स के सामने प्रेजेंट किया हमारा पिच and then slowly they start tasting it and then हर feedback आती है. and यार राज की बात का viewers ये तो मैं बताती हूँ, it's all reality TV, so you know not everything happens is real or not everything happens is fake. you know सब बीच में उन लोगों ने edit करके दिखाते हैं. but it was very lovely, everybody were very nice, very friendly. discussions बहुत ही intense भी जाती है and you know there are ups and downs but at the end like अच्छा लगा. अमित जैन इन्वेस्ट किए थे for the same deal for 5%. he gave 50 lakhs but 25 in equity and 25 in debt. so इसकी बाद due diligence होती है, सब होती है, then we are very happy to have him on board. Super. मजेदार. Now Licksters is not just in Nagpur, it's also in Nasik and Raipur. Yeah, so already signed up for more locations. Already signed up for more locations. अब चूंकि Licksters का जो ब्रांड है वो नागपुर से शुरू हो रहा है, कहाँ तक पहुँचाना है? What's the big dream? आखिरी के 2-3 सवाल. What's the big dream?
एक चीज बहुत हम रोज देखते हैं, रोज सोचते हैं, 250+ आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया एंड अदर कंट्रीज एंड इतना जगह पहुंचना है. वी वांट टू बी लाइक द स्टारबक्स ऑफ आइसक्रीम्स बेसिकली. सो जितना अच्छे क्वालिटी में हम देना चाहते हैं, which normal companies are not able to give for some reason. So we wanted to keep that 80% of fruit concentration intact, जो हम जोर जोर से सबको बता रहे हैं. इससे ज्यादा फ्रूट कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. ये तो चैलेंज कहीं भी बोल सकते हैं. So we want to make sure that we grow to at least 250 stores across the globe in the next 5 years. In the next 5 years. फैमिली बढ़ाने का कुछ प्लान है कि नहीं है? यार है ना, अभी लिक्सटर्स में 25 पीपल है. इससे ज्यादा बड़ा फैमिली क्या चाहिए? और चाहिए, कंपनी में बहुत चाहिए. और चाहिए. ओके. अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, हाँ. उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया है, दिव्या सुब्बुराजू, है ना, उसके नीचे क्या ऐसी कोट को, क्या ऐसी लाइन, क्या ऐसा थॉट, क्या ऐसा पर्सपेक्टिव, क्या ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग दिव्या को याद करें? What is that one thing? Probably the quote of your life. What's that? दिव्या सुब्बुराजू के साथ हमेशा मैं परिमल खाड़ीकर जुड़ना चाहती हूँ. For sure, which I always wanted to be there. And who want to create a revolution in ice cream industry. Have created a revolution in ice cream industry. That's exactly what I want to write over there. लिक्स्टर्स ये ब्रांड को लोग किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं हमेशा? पॉप्सिकल्स है तो लिक्स्टर्स, फ्रूट है तो लिक्स्टर्स. इससे ज्यादा फ्रूट कहीं नहीं. इससे ज्यादा फ्रूट कहीं नहीं. सो व्हेन यू हैव टू चूज हैप्पीनेस, चूज लिक्स्टर्स. डेफिनेटली. आप ऐसे ही इंस्पायर करती रहें, आप ऐसी ही मुस्कुराती रहें, आप ऐसी ही आगे बढ़ती रहें, और आप ना ही सिर्फ भारत को, लेकिन मज़ा तब आएगा जब हीथ्रू एयरपोर्ट पर लिक्स्टर्स का स्टोर होगा और वहाँ पर जाने वाला हर कोई पढ़ेगा लिक्स्टर्स के नीचे लिखा हो नागपुर, और नागपुर को गौरवग्रत महसूस कराएंगी आप हमेशा. इसका पता मुझे ज़रूर है और उम्मीद है आप वैसे ही करेंगे. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें सीताफल शेक पिलाया, आपने हमें पॉप्सिकल खिलाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. यू हैव अ ग्रेट स्टोरी and Divya, you are an inspiration. I cannot thank Nagpur people more because जो शुरू करते हैं उसके बड़ा चीज होती है जो कस्टमर्स वापस हमारा अभी तक भी 75 to 80% कस्टमर्स रिपीट कस्टमर्स होते हैं. जो पहला दिन से जो आए हैं, हमारा चेंजेस देखे हैं, अभी भी वो बोलते हैं हम वो स्टोर से, आपका पहला स्टोर से अभी भी आ रहे हैं. नागपुर हैज प्लेड अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल. हमारा शहर कितना भी बोले छोटा शहर है, बट उसमें एक ब्रांड खड़ा करना इज बिकॉज ऑफ द पीपल ओनली. एब्सोल्युटली. दे हैव लव्ड द प्रोडक्ट, दे हैव बीन विद अस, दे हैव सपोर्टेड अस. आई मीन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन से बोल रही हूँ, बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर दिस शो, फॉर राज, फॉर लेटिंग मी स्पीक, एंड थैंक यू गाइस ऑल्सो. थैंक यू सो मच. दिव्या सुब्बुराजू हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर से खास बात हुई, मुलाकात हुई. जावेद अख्तर साहब ने एक पेन बनाने वाली कंपनी के लिए ये एडवर्टाइजमेंट लिखा था कई साल पहले जब मैं छोटा था. इट वाज दिस ऑल अबाउट 90s दे, जहाँ पे ये टेलीविजन पे ये ऐड आता था और ये बड़ा इंस्पायर कर देता था. और वो ऐड के जो शब्द थे वो कुछ ऐसे थे कि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो मुश्किलें, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि एक फाइटर हमेशा जीतता है. सवाल आपके सामने सिर्फ इतना है कि क्या आप एक नागपुर के ब्रांड को इंटरनेशनल ब्रांड बनाएंगे? सवाल आपके सामने है. अगर आप एक नागपुर के हैं, एक नागपुर के सिटीजन हैं, तो आपसे बहुत सारी अपेक्षा है. अपेक्षा ये छोटे छोटे व्यापारियों की जो अपने ब्रांड को बनाने के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देते हैं. आप लिक्स्टर्स को कहाँ तक ले जाते हैं ये वाकई में ये आपको ही पता है. लक्ष्मी भवन स्क्वायर धर्मपेट में लिक्स्टर्स का आउटलेट है. वहाँ पर आप आएँ, अपने पसंद का पॉप्सिकल खाएं, अपने पसंद की आइसक्रीम खाएं, अपने पसंद का शेक पिएं. और अगर क्वालिटी ख़राब लगे ना साहब तो कभी किसी को रेकमेंड नहीं कीजिएगा. पर अगर पसंद आ जाए ना साहब तो इसको आसमान तक पहुँचाइएगा. जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि ये ब्रांड आपके शहर का है.
आपसे फिर होगी मुलाकात दिन रात की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बेटी है जो भले ही अपने सपने आपको जरूर नहीं बताती है, लेकिन एक ब्रांड को उस लेवल तक पहुंचाती हैं कि आज पूरे देश में लोग इनके चर्चे कर रहे हैं, तो समझिए वो दिव्या सुबुराजू बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।